हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑडियो बुक 5 ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 एवोल्यूशन। ठीक है, तो इस ऑडियो बुक में अपन करने वाले हैं हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। लेकिन हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल बताने से पहले इसके प्रीवियस लेक्चर में जो अपन ने थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन को किया था, या बेसिकली कहना चाहिए बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के बारे में जो पढ़ा था, इंक्लूडिंग मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन को, जिसमें हमने ह्यूगो डी व्रीज का म्यूटेशन थ्योरी पढ़ा था, उनका एक बार अपन अच्छे से क्या कर लेते हैं रिवीजन, क्योंकि उसकी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन छूट गई थी। तो देखो, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में आ जाओ 7.5 और 7.6 एनसीईआरटी की बुक में, इसकी पहले रीडिंग ले लेते हैं, फिर हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल शुरू करेंगे। Evolution by natural selection in true sense would have started when cellular form of life with difference in metabolic capability originated on Earth. Essence of Darwin theory about evolution is natural selection. Rate of appearance of new form is linked to the life cycle or the lifespan. Microbes that divide fast have ability to multiply and become millions of individuals within hours. Colony of bacteria say A. Growing on a given medium has built-in variation in terms of ability to utilize feed component. A change in the medium composition would bring out only the part of the population, say B, that can survive under the new condition. In due course of the time, this variant population outgrow the others and appear as new species. This would happen within days. For the same thing to happen in a fish or fowl would take millions of years, as if span of these animals are in years. Here we say that fitness of B is better than that of A under the new condition. Nature select for fittest. Nature select for the fitness. One must remember that the so-called fitness based on characteristics which is inherited. Hence, there must be genetic basis for getting selected and to evolve. Another way of saying the same thing is that some organisms are better adapted to survive in an otherwise hostile environment. Adaptive ability inherited. It has genetic basis. Fitness is the end result of the ability adapted and gets selected by nature. Branching descent and natural selection are the two key concepts of Darwin theory of evolution. Even before Darwin, French naturalist Lamarck had said the evolution of life form had occurred but driven by use and disuse of organ. He gave example of giraffe who in an attempt to forage leaf on the tall tree had to adapt by elongation of their neck. As they passed on this acquired character of elongated neck to succeeding generation, giraffe slowly over the year came to acquire long neck. Nobody believed this conjecture anymore. Is evolution a process or a result of process? The world we see and animate is the only success story of evolution. When we describe the story of this world, we describe evolution as a process. On the other hand, when we describe the story of life on earth, we treat evolution as a consequence of process called natural selection. We are still not very clear whether to regard evolution and natural selection as processes or end result of unknown processes. It is possible that the work of Thomas Malthus on population influenced Darwin. Natural selection is based on certain observation which is factual. For example, natural resources are limited, population are stable in size except for seasonal fluctuation. Member of population vary in characteristics. In fact, no two individuals are alike. Even though they look superficially similar, most of variation are inherited, etc. The fact that theoretically population size will grow exponentially if every day reproduced maximally. This fact can be seen in a growing bacterial population, and the fact that population size in reality are limited means that there had been competition for resources. Only some survived and grew at the cost of others that could not flourish. The novelty and brilliant insight of Darwin was this. He asserted that variation which are heritable and which make resource utilization better for few adapted to habitat better will enable only those to reproduce and leave more progeny. Hence, for a period of time, over many generations, survivors will leave more progeny and there would be a change in population characteristic and hence new form appear to arise. अब पहले मैं डार्विन की थ्योरी और लामार्क की थ्योरी को बता देता हूँ। यह है डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो कि एनसीईआरटी की रीडिंग के अकॉर्डिंग मैंने उसके पॉइंट्स बना के तुमको बताया है। डार्विन का कहना है किसी भी
पॉपुलेशन का इवोल्यूशन होने के लिए ये 4-5 चीज़ें ज़रूरी है। पहला ओवर प्रोडक्शन, दूसरा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जिसमें 3 टाइप है, इंटरस्पेसिफिक एनवायरमेंटल स्ट्रगल। ये सब मैं पिछले वीडियो मतलब ऑडियो बुक में बता चुका हूँ, उसमें जाके चेक कर लेना एक बार, ठीक है। फिर एनवायरमेंटल स्ट्रगल, वेरिएशन एंड हेरिडिटी, सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशी, ठीक है। फिर थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो कि लामार्क ने दी, इंटरनल वाइटल फोर्स, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड नीड, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, एग्जांपल जिराफ एंड स्नेक। जिराफ की गर्दन पहले छोटी थी लेकिन धीरे धीरे करके इवॉल्व होने के बाद ये लंबी हो गई। सांप के पहले पैर थे लेकिन उसका यूज उन्होंने बंद कर दिया तो अब उनके पैर नहीं देखने को मिलते। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, और जैसे ही ये लोगों ने कैरेक्टर्स को एक्वायर किया यानी सांप ने अपने पैर यूज करना बंद कर दिए तो कुछ जनरेशन के बाद जो कैरेक्टर्स थे वो दिखना बंद हो गए। या जिराफ ने अपनी गर्दन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया तो उसकी जो लंबी गर्दन का इफेक्ट था वो उसकी दूसरी जनरेशन में दिखने लगा। उसके बाद म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन 7.6 पे आ जाओ। What is the origin of this variation and how does the speciation occur? Even though Mendel had talked about the inheritable factor influencing phenotype, Darwin either ignored these observations or kept silence. In the first decade of 20th century, Hugo de Vries, based on his work of evening primrose, जो कि एक plant था, brought forth the idea of mutation, large difference arising suddenly in a population. He believed that it is mutation which cause evolution and not minor variation. डार्विन का क्या कहना था? अकॉर्डिंग टू डार्विन जो एवोल्यूशन हुआ है वो छोटे छोटे चेंजेस के बाद हुआ, यानी कि पहले हम बंदर से होमोसेपियन मतलब बंदर से नॉर्मल इंसान की तरह दिखने वाले, गोरिल्ला चिंपांजी जैसे दिखने वाले बने, फिर आदिवासी बने, फिर इंसान बने। लेकिन ह्यूगो डी व्रीज का क्या कहना था? ह्यूगो डी व्रीज का ये कहना था कि हम बिना किसी छोटे छोटे चेंज के आए एक ही बार में क्या हो गए, बंदर से इंसान बन गए, यानी कि एक लार्ज डिफरेंस आ गया हमारी पॉपुलेशन में। Hugo de Vries, based on his work of evening primrose, brought forth the idea of mutation, large difference arising suddenly in our population. He believed that it is mutation which cause evolution and not a minor variation that Darwin talked about. Mutation are random and directionless, while Darwinian variation are small and directional. Evolution for Darwin was gradual, while de Vries believed mutation caused speciation and hence called it saltation. Single step large mutation. Study in population genetic later brought out the some clarity. लेकिन अगर हम म्यूटेशन के बारे में स्पेसिफिकली बात करें तो ह्यूगो डी व्रीज का ये तो एनसीईआरटी का हो गया, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ ये इस पर्टिकुलर नोट में है। अब ये जो स्क्रीन पे तुमको नोट्स दिख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ह्यूगो डी व्रीज का क्या कहना था? In 1901, Hugo de Vries carried out experiment on evening primrose plant and proposed the mutation theory of evolution. This theory states that evolution occurs by appearance of sudden character difference and population. Just a while. Okay, so in 1901, Hugo de Vries carried out experiment on evening primrose plant and proposed the mutation theory of evolution. This theory states that evolution occur by appearance of sudden large difference in population. बहुत बड़े large difference के कारण एक population में changes आए. He believed that mutation is the only cause of evolution and not the minor heritable variation that Darwin talked about. उनको लगता था डार्विन जिस वेरिएशन की बात कर रहा है कि छोटे छोटे वेरिएशन से एक इवोल्यूशन का जो होता है गठन होता है तो वो गलत था, ऐसा ह्यूगो डी व्रीज को लगता था। ही स्टेटेड दैट म्यूटेशन कॉज स्पीशीएशन एंड नेम्ड इट सॉल्टेशन। उन्हें लगा म्यूटेशन ही है जो स्पीशीज में वेरिएशन ला रहा है, जिसको उन्होंने स्पीशीएशन कहा और उसको नाम दिया सॉल्टेशन। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन आर रैंडम एंड विदाउट डायरेक्शन, व्हाइल डार्विनियन वेरिएशन आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल। अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी व्रीज म्यूटेशन जो थे ये एक लार्ज स्टेप या रैंडम और बिना डायरेक्शन के एक प्रोसेस थे, जबकि डार्विन के अकॉर्डिंग ये जो वेरिएशन थे ये छोटे और डायरेक्शनल प्रोसेस थे, ठीक है। उसके बाद मैंने तुमको बताया कि मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी आई जो कि अपने एनसीईआरटी में नहीं दी है, बट तुम में से कोई इंटरेस्टेड है जानने के लिए तो मैं बता देता हूँ जस्ट फॉर अ नॉलेज।
With progress in genetics, source of variation were explained and Darwin theory was modified. Now the most accepted theory of evolution is known as modern synthetic theory of evolution. यानी कि डार्विन की थ्योरी को सिलेक्ट कर लिया गया था और उनकी थ्योरी को मॉडिफाई करके मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को बनाया गया था. डिजाइंड बाय हक्सले, जिसे हक्सले ने HUXLEY हक्सले ने 1942 में दी. In this theory, origin of species based on the interaction of genetic variation in a population. जब किसी genetic variation का किसी population में interaction होता है तब एक न्यू स्पीशी बनती है. ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी का कहना था अकॉर्डिंग टू डार्विन थ्योरी. ठीक है. And based on the interaction of genetic variation in a population, natural selection and reproductive isolation by various means such as migration, hybridization, chance, etc. और ज़रूरी नहीं है ये जो पॉपुलेशन में चेंजेस आ रहे हैं ये सिर्फ रिप्रोडक्शन में जेनेटिक जो है चेंजेस की वजह से हो रहे हो. माइग्रेशन, हैबिटेट, ठीक है, उसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन, इन सब के भी जो रोल हैं वो भी उतने ही इक्वल हैं फॉर अ पॉपुलेशन. ठीक है, टू चेंज इट्स जेनेटिक कैरेक्टर. अब बात करते हैं हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल की. ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल की. इतना क्लियर हो गया. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो और इसका भी ले लो. ठीक है, अब बात करते हैं हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल की. ये है अपना चौथा पॉइंट. ओवरऑल चौथा है. ठीक है, ये तीसरा था पीछे वाला, अभी चौथा है. अब अपन हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को समझने वाले हैं कि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल का क्या कहना था इवोल्यूशन के लिए. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल. जस्ट अ व्हाइल. हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल. ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं. इसका फॉन्ट क्या रखें, ये रख देते हैं. चलो, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल किसने दिया था, हार्डी वेनबर्ग यानी कि GH हार्डी और W वेनबर्ग ने इसको स्टैब्लिश किया था. ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के जरिए इवोल्यूशन के बारे में बताना चाहते थे. पहले NCERT की रीडिंग ले लेते हैं, फिर मैं पर्टिकुलरली NCERT में से और दूसरी बुक के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लाइंस के फॉर्म में पूरे के पूरे जो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल है उसके नोट्स दे देता हूँ अभी टाइप करके. लेकिन पहले NCERT की रीडिंग कर लेते हैं. अभी मैं टाइपिंग नहीं कर रहा हूँ, अभी पहले NCERT की रीडिंग करके समझ लेते हैं. 7.7 हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल. इन अ गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ अलील. हम किसी पॉपुलेशन में पाए जाने वाली अलील की फ्रीक्वेंसी के बारे में पता लगा सकते हैं. दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू रिमेन फिक्स्ड एंड इवन रिमेन सेम थ्रू द जनरेशन. ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फिक्स भी रह सकती है या सेम भी रह सकती है. अब तुम लोग बोलोगे यार दोनों का मतलब तो सेम ही है. नहीं, फिक्स रहने का मतलब है कि अगर किसी पॉपुलेशन में ऐसा हो रहा है कि सारे की पॉपुलेशन का जो कैरेक्टर है वो ये है कि उसके पूरे शरीर पे बाल हैं, तो वो आगे कितना ही बड़ा एवोल्यूशन क्यों ना हो जाए उसके ऊपर वो बाल हमेशा ही रहेंगे. लेकिन सेम रहने का मतलब ये है कि कुछ जनरेशन तक सेम रहेंगे और बाद में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो सकते हैं. हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल स्टेटेड इट यूजिंग एल्जेब्रिक इक्वेशन. इन्होंने मैथमेटिकली या एल्जेब्रिक इक्वेशन के जरिए बताया. ये दूसरे बंदे थे जिन्होंने एल्जेब्रिकली एक्सप्लेन किया जेनेटिक मटेरियल के बारे में या कह लो एवोल्यूशन के बारे में. बेसिकली अपन बात तो जीन फ्लो की कर रहे हैं, है ना. तो ये दूसरे बंदे थे. अब तुम लोग कहोगे पहला बंदा कौन है, यही तो तुम्हारा टास्क है. हिंट देता हूँ, चलो हिंट भी नहीं देता मैं. 12th की बायोलॉजी का एक चैप्टर है जिसमें अपन ने पढ़ रखा है ऑलरेडी, ऑडियो बुक में भी और वीडियो में भी. ठीक है, वीडियो में पता नहीं मैंने डाला है कि नहीं, लेकिन ऑडियो बुक मैंने भी डाल दी है. तो उसको जाके देखना और बताना किस चैप्टर के कौन से टॉपिक का कौन से पार्ट में किसने बताया है मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज़ करके जेनेटिक के बारे में. ठीक है, ये तुम्हारा टास्क है. This principle say that allele frequency in a population are stable and is constant from generation to generation. इनका कहना था किसी जीन की, allele मतलब जीन की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और स्टेबल है एक से दूसरी जनरेशन में. द टोटल जीन एंड देयर allele in a population मतलब कि जीन पूल
remain constant. This is called genetic equilibrium, और इसको उन्होंने genetic equilibrium कहा. Sum total of all gene frequency is 1. जितने भी जीन की फ्रीक्वेंसी अगर अपन कैलकुलेट करेंगे, सारे जीन की फ्रीक्वेंसी अगर कैलकुलेट करते तो उसका आंसर 1 आता है. Individual frequency, for example, can be named P, Q, etc. in a diploid P and Q. Represent the frequency of allele A and allele capital A and small a. Frequency of capital A individual in a population is simply P square. यानी कि capital A का P square है. This is simply stated in another both the chromosome of a diploid individual. This is stated in another way that the probability that an allele A, capital A, with a frequency of small p appear on both the chromosome of small a diploid individual is simply and product of probability that p square. Similarly, of small a is q square, capital A का p square, small a का q square. Of capital A and small a 2pq, capital A और small a का 2pq है. Hence p square plus 2pq plus q square is equal to 1. This is a binomial expansion of p plus q whole square. When frequency measured differs from expected value, the difference indicates the extent of evolutionary change, disturbance in genetic equilibrium or Hardy-Weinberg equilibrium. That change of frequency of allele in a population would then be interpreted as resulting in evolution. 5 factors are known to affect Hardy-Weinberg equilibrium. These are gene migration or gene flow, genetic drift, mutation, genetic recombination and natural selection. अब इनके इफेक्ट इस प्रिंसिपल को अफेक्ट करने वाले 5 फैक्टर्स थे. कौन कौन से? जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो कह लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट दूसरा, म्यूटेशन तीसरा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन चौथा और नेचुरल सिलेक्शन पांचवा. ठीक है. When migration of a section of population to another place and population occur, gene frequency change in original as well as in the new population. New gene or allele are added to the new population and these are lost from the old population. There would be gene flow if this gene migration happened multiple times. If the same change occur by chance, it is called genetic drift. Sometimes the change in allele frequency is so different in the new sample of population that they become a different species. The original different population become founder and the effect is called founder effect. माइक्रोबियल, अब देखो फाउंडर इफेक्ट, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट तो तुमने समझाया ही नहीं. अभी मैं जो नोट्स टाइप करके बताऊंगा उसको बस याद कर लेना और लिख लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा. एनसीईआरटी का ही निचोड़ दूंगा मैं तुमको, टेंशन मत लो. जैसे नींबू को निचोड़ के पूरा जूस निकालते हैं ना, ठीक है, नींबू पानी वाले से कि भैया नींबू पूरा निचोड़ो, 10 रुपये दे रहे तो नींबू पूरा निचोड़ के जूस बनाना. वैसे ही तुम मुझे कुछ दो ना दो, मैं तुमको नींबू निचोड़ के जरूर दूंगा, मतलब एनसीईआरटी. ठीक है. न्यू जीन और allele are added to the new population. Founder effect हो गया. Microbial experiments show that pre-existing advantageous mutation when selected will result in observation of new phenotype. Over few generations, this would result in speciation. Natural selection is a process in which heritable variation enabling better survival are enabled to reproduce and leave greater number of progeny. A critical analysis makes us believe that variation due to mutation or variation due to recombination during gametogenesis or due to gene flow or genetic drift result in changed frequency of gene and allele in future generation. Coupled to enhance reproductive success, natural selection make it look like different population. Natural selection can lead to stabilization in which more individual acquire mean character value, directional change, more individual acquire value other than the mean character value, or disruption, more individual acquire peripheral character value at both end of the distribution curve. ठीक है. अब हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में जो टाइप करके बता रहा हूँ वो ध्यान से समझो, लिखो, तुम्हारे को ये पूरा का पूरा कंठस्थ हो जाएगा. ठीक है. म्यूटेशन. हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल का शुरू करते हैं. म्यूटेशन. इंट्रोड्यूस न्यू जीन. यार ये अगर JEAN दिखाएगा ना तो इसको प्लीज जीन पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है मेरे से एक आध वर्ड स्किप हो जाए. जीन
न्यू जीन फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, इन 1908. In 1908, G.H. Hardy and W. Weinberg established a simple mathematical relationship. Established a simple mathematical relationship to study these gene frequency and gave Hardy-Weinberg principle. To study these gene frequencies and gave Hardy-Weinberg principle. And gave Hardy-Weinberg principle. ठीक है, डन, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इसको पहले डन कर देते हैं और उसका फॉन्ट मैं सही कर देता हूँ ताकि दिखाई दे मोटा मोटा। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे नेक्स्ट है, दिस principle states that the gene frequency in a population is stable and is constant from generation to generation. That gene pool remains constant. Full stop. This is called genetic equilibrium or Hardy-Weinberg equilibrium. Hardy-Weinberg, वेंडर नहीं भाई, वेंडर कैसे बना देंगे सर को, वेंडर ना बनने देंगे, वेनबर्ग बनाएंगे, वेनबर्ग प्रिंस इक्विलिब्रियम, ठीक है। This principle states that gene frequency in a population is stable, by table नहीं stable and is constant from generation to generation. That gene pool remains constant. Full stop. This is called genetic equilibrium और Hardy-Weinberg equilibrium. ठीक है, इतना क्लियर। आगे बढ़ें, चलो बढ़ते हैं आगे। इतना डन कर देते हैं पहले और इसका फॉन्ट मोटा मोटा कर देते हैं, मोटा मोटा, इतना मोटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सम total of all allelic frequencies is equal to 1. Example, in a diploid organism, if P and Q represent the frequency of an allele A and allele A, अब यहाँ थोड़ा सा हाथ डालना पड़ेगा। सम टोटल ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, allelic frequency, not analytical, allelic, okay, allelic, all allelic frequency is equal to 1. Example, in a diploid organism, if P and Q represent frequency of an allele say capital A and small a, frequency of
frequency of capital A is individual. Frequency of capital A individual in a population is P square of A is Q square ये P छोटा वाला रहेगा, बड़ा वाला नहीं, P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर, ठीक है। एंड ऑफ कैपिटल A स्मॉल a इज 2PQ, ठीक है, 2PQ। ठीक है, अभी मैं यहाँ छोटा सा इसकी जगह दे रहा हूँ क्योंकि और अभी एक और छोटा सा 3-4 लाइन आएंगी तो उसके लिए जगह हो जाए। आगे hence it is expressed by following रिएक्शन। अब वो रिएक्शन क्या देख लो, सबको पता है मेरे ख्याल से, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। P स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1। This is called binomial expansion, ठीक है, of P plus Q whole square, ठीक है, P plus Q whole square। आगे the extent of evolutionary change in difference between value of frequency measured and value expected, full stop, the disturbance is in genetic equilibrium, would result in evolution, शायद जगह कम है। would के बाद इतना तो समझ जाओगे ना, रिजल्ट इन एवोल्यूशन, ठीक है। ये हो गया हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, इतना क्लियर हुआ, समझ में आया। म्यूटेशन इंट्रोड्यूस, ठीक है, जस्ट वाइल, ऑलरेडी आधे घंटे का वीडियो ऑलरेडी खींच चुका है, पर मैं ऐसा नहीं चाहता था लेकिन मुझे खींचना पड़ा, तो अभी तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं तुमको पहले फैक्टर्स की डेफिनेशन बता दूं सबकी, जैसे जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन, ताकि तुम्हारा हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल आज की डेट में ख़त्म हो जाए। मैं नहीं चाहता थी कि ये और लंबा खींचे, ठीक है। हालांकि ये वो हो गया अपना म्यूटेशन इंट्रोड्यूस न्यू इनटू अ जनरेशन, ये फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। पहला जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, न्यू जीन आर एडेड टू न्यू पॉपुलेशन एंड आर लॉस्ट फ्रॉम ओल्ड पॉपुलेशन, in turn changing the gene frequency. This is called gene migration. When gene migration occur multiple time, it is called gene flow. Genetic drift, ये दूसरा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है
हार्डी-वेइनबर्ग के प्रिंसिपल को। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? इट रिफर टू अ रैंडम जीन फ्रीक्वेंसी चेंज एंड अकर ओनली बाय चांस। ये एक रैंडम जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंज होने की वजह से होता है और ये चांस फैक्टर होता है। एट द टाइम द चेंज इन allele frequency is so different in the new sample of population that they become a different species। और ये चेंज इतना बड़ा होता है कि जो स्पीशी है वो अपनी ओरिजिनल स्पीशी से बिल्कुल अलग दिखने लगती है। मान लो बंदर है, बंदर में 10 दिन बाद एक ऐसा चेंज दिखने वाला कि सेम बंदर इंसान जैसा दिखने लगा, यानी इतना ड्रास्टिक लेवल का चेंज आता है। एट द टाइम change in allele frequency is so different in your sample of population that they become different species। The original drifted population become the founder and the effect is called founder effect। क्योंकि ये ओरिजिनल स्पीशीज से एक बिल्कुल न्यू स्पीशीज में बना है, तो ओरिजिनल स्पीशीज फाउंडर है, लेकिन जिस कारण से बना उसको फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। तीसरा, म्यूटेशन। सडन चेंज इन अपीयरेंस और वेरिएशन इन इंडिविजुअल और पॉपुलेशन आर कॉल्ड म्यूटेशन। यानी कि ऐसे सडन अपीयरेंस फिजिकल कैरेक्टर में किसी पॉपुलेशन की है उसको म्यूटेशन कहते हैं। दे लीड टू डेवलपमेंट ऑफ द न्यू फिनोटाइप्स। फिनोटाइप मतलब फिजिकल कैरेक्टर। दो म्यूटेशन आर रैंडम एंड अकर एट अ वेरी लो रेट, दे आर सफिशिएंट टू क्रिएट कंसिडरेबल जेनेटिक वेरिएशन फॉर स्पीशिएशन टू अकर। म्यूटेशन का भी यहाँ पे दिया है, देख लो, ठीक है। म्यूटेशन इंट्रोड्यूस न्यू जीन इनटू अ, ठीक है। हालांकि ये वाला मत देखो, ये वाला देख लो, म्यूटेशन जो है इंट्रोड्यूस न्यू जीन, ठीक है। ये तो फिर हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल का हो गया। म्यूटेशन का शायद है नहीं मेरे पास, एक न्यू स्लाइड में बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक न्यू स्लाइड में बना दूंगा, नेक्स्ट क्लास में उसके नोट्स दे दूंगा। अभी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन समझ लो। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इसको लिख लो। व्हेन द allele of parental linkage groups separate and new association of allele are formed due to crossing over during gametogenesis, the process is known as genetic recombination। जब बहुत ही अलग डीएनए वाले स्पर्म्स आके गैमेटोजेनेसिस करते हैं तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को अंडरगो करते हैं। पांचवा, नेचुरल सिलेक्शन। इट अकर ड्यू टू इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन। इट लीड टू द सर्वाइवल ऑफ दोज हु बेस्ट फिट इन एन एनवायरमेंट, reproduce well and survive, hence get selected by nature। Depending upon trait favored, natural selection can have following three effects। Stabilization, अब stabilization के अंदर लिखना, large number of individual acquire mean character value, that variation is much reduced। This operate by favoring, दूसरा है, एक मिनट, ये हो गया स्टेबलाइजेशन। उसके बाद दूसरा डायरेक्शनल चेंज। लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल acquire value other than mean character value। This operate in response to gradual change in environmental condition like during industrial revolution in peppered moth। जैसे कि अपन ने मॉथ के केस में देखा था, है ना, डार्क विंग्ड और वाइट विंग मॉथ के केस में। तीसरा, डिसरप्शन। जो तीसरा ग्राफ दिख रहा है ना जिसमें दो पीक्स बनी है एनसीईआरटी में, देखो ध्यान से, ये होता है डिसरप्शन। Large number of individuals acquire peripheral character value at both ends of the distribution curve। It is rare in occurrence but important for evolutionary change। Fluctuating condition within environment may favor this type of natural selection। ठीक है, डन। अब देखो, अपन ने हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल भी कंप्लीट कर लिया है, एनसीईआरटी रीडिंग एंड विद द बेस्ट नोट्स। अब अपन ऑडियो बुक, ये जो भी ऑडियो बुक थी, मुझे अभी एग्जैक्टली ऑडियो बुक नंबर याद नहीं आ रहा है, नेक्स्ट जो भी ऑडियो बुक होगी उसके अंदर अपन ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन पढ़ेंगे, जिसमें अपन सबसे पहले प्लांट का, फिर एनिमल का, एंड उसके बाद की जो अगली ऑडियो बुक होगी या उसी ऑडियो बुक में, जैसे ये जो ऑडियो बुक थी इसके बाद जो ऑडियो बुक आएगी उसी में ह्यूमन एवोल्यूशन कर लेंगे या उसके बाद वाली ऑडियो बुक में, क्योंकि मैं चाहता हूँ ह्यूमन एवोल्यूशन में कुछ अलग तरीके से कराऊँ, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 2 और वीडियो आएंगे। जो अगला वीडियो होगा वो प्लांट और एनिमल के एवोल्यूशन पे बेस्ड होगा, और जो उसके बाद वीडियो आएगा ऑडियो बुक मतलब वो ह्यूमन के एवोल्यूशन पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में विद द न्यू टॉपिक। तब तक दिस इज मी विक्रम तेहरा साइनिंग ऑफ। और जैसे कि तुम्हें पता है 10 से लेकर 12 तक के साइंस के डिटेल लेक्चर्स हमारे चैनल हिंदी साहित्य का में ऑलरेडी डाल दिए गए हैं।
और उसके अलावा जैसे कि तुम्हें पता है मेरी एक इंस्टाग्राम पे आईडी भी है विक्रमादित्य अहरराव के नाम से, विक्रमादित्य डैश अहरराव, ठीक है। ये है मेरी आईडी, इस पे जाके मुझे फॉलो कर लेना। और इसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी डाल रखे हैं, तो उनको भी जाके तुम चेक कर सकते हो, विजिट कर सकते हो सारे वीडियोस को, ठीक है। उसके अलावा क्लास 12th ऑडियो बुक प्लेलिस्ट, क्लास 11th ऑडियो बुक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है। 11th के ऑडियो बुक के प्लेलिस्ट में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, बायोमोलिक्यूल, सेल यूनिट ऑफ लाइफ और जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसमें ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड द एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डल चुका है। और 12th के ऑडियो बुक की प्लेलिस्ट में फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन मॉलिक्यूलर बेसिस का जब पूरी वीडियो बन जाएगी तब मैं डालूंगा, क्योंकि मैं वो चैप्टर बहुत ही लंबा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओम शरण बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में, तब तक के लिए ये ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।